बात है सर। ठीक है, जो I am going to start the next topic of your syllabus, that is parameter estimation, maximum likelihood estimation. Okay. Parameter estimation, and inside I am going to discuss maximum likelihood estimation. So the basic problem is that why we need this one, and what is the parameter estimation. In the case of Gaussian distribution, you have seen that there are two kind of parameters. The first parameter was the mean and the second parameter was the variance. Okay. So mu and the sigma square were the two parameters, and if you can remember, the formula was written as P of x omega I equal to 1 upon 2 pi d upon 2 sigma half exponential of minus half x minus mu, this is x minus mu transpose, because it is vector quantity, sigma inverse x minus mu. This was the Gaussian distribution equation, and when we talk about the discriminant function, because we try to differentiate between the two classes, that whether an item will belong to this class or that class. In that case, if you can remember, we have devised the discriminant function. This discriminant function may be either line, may be a kind of curve, may be a plane in the case of 3 dimension, etc., etc. So to get the discriminant function, we take the logarithmic of this Gaussian distribution function, and we have got, if we take the logarithmic of this, we will get the discriminant function as, on one of the term we have already done this, you can see there. If you take the log, then this term, the exponential and log term will be cancelled out, and you will get simply x minus mu transpose sigma inverse x minus mu minus d by 2 log of 2 pi minus half log of sigma I plus log of omega I. So this was the equation of discriminant function. In this equation, you can easily see that this term is a constant term, and this term is also a constant term, because the size of class will not have any contribution over the discriminant function, over the distinction between classes, because it is itself a class. So there is no role to discriminate between the items of 2 or 3 different classes. So this term will be of no use. So simply if we can simplify the equation of discriminant function, in this case it will become just as half
x minus mu transpose sigma inverse x minus mu, because these two terms have been cancelled out, therefore it simply become half log of sigma I. Okay. So this is the equation of discriminant function where we can discriminate two classes. Okay. Now next thing is that in the case of Gaussian distribution, you can see that there are two parameters. One is the mean value and the other is variance value. Okay, and other is the variance value. In case of less number of variable, you can write this kind of sigma. So this is the difference between these two sigma. So in place of this sigma, you can write this sigma with square. Okay, so we are going to write this sigma square here, because in this case you are taking only the simple case, not the complicated case. So you can easily see that there are two parameters. One is the mean value and another is the sigma square value. Okay. Now there may be so many cases, just like in the case of exponential distribution, in the case of Poisson distribution, there can be so kind of distribution function, but we don't know what will be the parameter in that case. Okay, just like in this case we know the basic parameters are mu and sigma square. There can be parameter in other kind of distribution also. So we are going to take a general case in which we will take the parameters by d. Okay, we are taking the symbol d as the parameter of a simple distribution function, and suppose there are c number of classes. Okay, because if you are using the discriminant function, that means there are more than one classes. So in this case we are supposing there are c number classes. So c number of classes. So if there are c number of classes, there can be at least c number of parameters. Okay, because every class will be having at least one of the parameter. So there can be c number of parameters, and suppose these parameters are d1, d2 up to dc. These are the parameters. Okay, the main function of this is to identify uniquely that particular class. Okay, suppose I am taking example that this is a class of man. So if this is a class of man, there can be some of the parameter on the basis of which you can easily identify that this is a man. Okay, so one of that will be the mustaq of that person. So likewise every class will be having at least one of the parameter, so that that class can be easily estimated or easily identified. Okay, now suppose there are some samples. Okay, these are the features, and now the next thing is that we are taking a probability density function, because every class will be having a kind of distribution. So if a class will be having a kind of distribution, that means you can calculate the probability density function in that particular class. And suppose I am writing that distribution function as the probability of x comma omega j, where x is the estimation of feature and omega j is the jth class. Okay, now d is the feature vector,
omega j is the class and x is the method by which we can estimate a parameter from that particular class. Okay. Now suppose we are taking the simple Gaussian distribution case, and on the basis of that we will proceed further. In the case of Gaussian distribution case, we can write the same thing as n mu and this sigma, okay, where mu is the mean and sigma is the covariance matrix, okay. And if we are taking the univariate case, in that case n mu and sigma square, okay. In the case of multivariate case, you use this kind of sigma, and in the case of the univariate case, you use this kind of sigma, that means small sigma with square sign, okay. In the case of general case, suppose this is not the Gaussian distribution function, this can be any of the distribution function like the exponential distribution function, the gamma distribution function, and it may be any of the distribution function. In that case, we can write the probability density function p x omega j with that parameter. By using that, we can estimate that particular class, by which we can estimate the parameters in that particular class. So we are using the information from this class, and suppose we are taking two same kind of information, one is for the ith class and one is for the jth class. So if both I and j are not same, in that case we can say that both of the things are isolated to each other and they can be uniquely identified, okay, they should be uniquely identified. जैसे मान लो आपको एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, तो क्लास अलग होंगे तभी ना आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर क्लास सेम रहेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है. तो उसी तरीके से इन दैट केस द कंडीशन मस्ट बी फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ओनली इन दैट केस द item can be uniquely identified. So for this case we have to estimate our main parameters. So this is one thing. Now sample in DI, samples in DI does not provide any information of DJ because both are isolated. So this indicates that samples in TI does not provide any information of थीटा जे, ठीक है. यानी कि jth क्लास का कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ith क्लास के सैंपल के द्वारा जो है नहीं मिलेगा आपको. So we can write this as the probability density function that is represented by px of theta. It indicate it will be represented by d, and there are n number of such samples because there are n number of classes. So there will be n number of such kind of distribution, and therefore there will be n number of such samples. So there will be n number of such samples. So if there are n number of such samples, that means there can be n number of mean also. ठीक है, ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो हम जो है इस चीज़ को लेमन लैंग्वेज में समझाएं. सर तो ये नहीं आ रही है. अच्छा ठीक है.
I hope you would have seen Bora. There is a device and its name is called as Parkhi. It is like an iron device, and when we put that device into Bora, then some grain or some particle of grain will come out, and by looking on that sample we can easily guess what is the actual quality of grain inside that Bora or that packet. So in this way, by getting only the sample point, we can guess about the total quality of grain inside that packet. And in my case also we are doing the same thing. We are taking sample, and based on some of its parameters we can easily guess and identify what will be the actual distribution, quality or information inside our actual class. So there can be more than one packets also, and from that packet also we can get the sample, just like we have done in my first case. And in this way there can be so many samples, and every sample will be having its own parameter of estimation, like its own mean value, its own variance value. And I hope you would have understood this thing now. चूँकि जो डिवाइस जिससे आपने ग्रेन्स को निकाला है वो सेम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए वी कैन ड्रा दिस थिंग लाइक दिस. गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको पता ही है, वो आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो एक सैंपल आपने इस तरीके से ड्रा किया. आप कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंस है वो आपका सेम टाइप का है, इसलिए जो कर्व आपने ड्रा किया है इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई यानी शेप इसका सेम होगा, लेकिन मीन पॉइंट इसके अलग अलग हैं. तो कोई आपने ऐसे ड्रा किया, कोई आपने ऐसे ड्रा किया, है ना. इस तरीके से जितने भी सैंपल आपने लिए हैं, नंबर ऑफ सैंपल इन दिस केस इज़ n, एंड देयरफॉर यू विल गेट n नंबर ऑफ सच कर्व्स. इस तरीके से n नंबर ऑफ कर्व आपको मिल गए. सबके अपने अपने मीन होंगे. इस एक का मीन यहाँ होगा, एक का मीन यहाँ होगा, एक का मीन यहाँ होगा. इसी तरीके से जितने भी होंगे सबके अपने जो है अलग अलग मीन होंगे. इसका मीन यहाँ होगा. ठीक है. ऑन द एक्स एक्सिस यू विल टेक एज x, on the y axis you will take as probability x and theta, because this is the probability density function, and therefore you know that there is a graph between x and x theta. इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई. इन हाँ, वन मोर थिंग, व्हाट इज थीटा इन द केस ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? एज आई ऑलरेडी सेड, थीटा इज mu and sigma square. There are only two parameters in this case. One is the mean value and the other is the variance. किस तरीके से वेरी कर रहा है और क्या इसका मीन है, यही दो जो है पैरामीटर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है. तो इन दिस केस दीज आर द टू थिंग्स. नाउ माय aim is to get the condition in which our estimate is best. Okay, we want to know the case in which our estimate is best. ठीक है. हमने ये कह दिया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन और मीन इतना है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ कम होंगी. ठीक है, लेकिन वो केस आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो what we do, we can draw different distributions where shape is same but mean value is different, and our aim is to find a case so that we get the optimal value like this. Okay.
इन सारे कर्व में से कोई एक कर्व ऐसा होगा जो कि ऑप्टिमल वैल्यू आपको देगा, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू वाला कर्व निकालना है ना। ये नहीं कि ढेर सारी वैल्यू जो है निकालना चाहते हैं, हम ऑप्टिमल, हम चाहते हैं कौन सा गेहूँ सबसे बेहतरीन गेहूँ है वो जो है निकालना चाहते हैं। तो वी आवर एम इज़ इन दिस केस इज़ टू गेट द ऑप्टिमल वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने थीटा किया और यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी एक्स थीटा है, दिस इज़ थीटा एक्चुअली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। नाउ इन दिस केस व्हाट इज़ वी कैन राइट, ओके, now one thing is that our aim is to find out the maximum likelihood. maximum likelihood का मतलब वो सलूशन जो कि बेस्ट सलूशन है, ठीक है। maximum likelihood का मतलब वो सलूशन जो कि बेस्ट सलूशन है, जो सलूशन जो है ऑप्टिमल सलूशन के ज़्यादा लाइकलीहुड है, ठीक है, ऑप्टिमल सलूशन के ज़्यादा सिमिलर है, वो केस हमें निकालना है। अब हम इस और जो है प्रोसीड करने जा रहे हैं। हैंग कर गया, अच्छा ठीक है भाई। अब हम उस केस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर हम उस केस की ओर मूव ऑन करते हैं तो आई एम गोइंग टू टेक अनदर सिमिलर पैरामीटर बिकॉज वी हैव सपोज दैट डी इज़ द पैरामीटर एस्टिमेशन फंक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि डी आपका क्या है, पैरामीटर एस्टिमेशन, सॉरी, डी इज़ द फीचर वेक्टर, ठीक है। डी वो फीचर वेक्टर है जिसकी मदद से क्या करते हैं, पैरामीटर को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। डी जो है फीचर वेक्टर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये आदमी है, एक आदमियों का क्लास है, उसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये आदमी है, तो उसकी मूछें होंगी, दिस इज़ वन ऑफ द फीचर वेक्टर, है ना। इसी तरीके से ढेर सारे जो है फीचर वेक्टर होंगे, तो ये आपका एक जो है फीचर, तो डी जो है फीचर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है। अच्छा, थीटा क्या है, ये आपका पैरामीटर है। तो ये जो ढेर सारे पैरामीटर्स आपके पास आए हैं, यानी n नंबर ऑफ जो कर्व आपने खींचे हैं, ये एक तरीके से क्या है, डिफरेंट पैरामीटर को बताने वाले कर्व हैं ये। और इसमें से क्या है, वो फीचर वेक्टर आपको चूज करना, यानी कि फीचर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, वो गेहूँ का सैंपल चूज करना है जिसके फीचर सबसे अच्छे हों, जिसमें इम्प्योरिटी सबसे कम हो। आपका एम क्या है, वो वाला गेहूँ लेना जिसका इम्प्योरिटी सबसे कम हो। तो फीचर वेक्टर उस केस के लिए ये हो गया, इम्प्योरिटी कम होना इज़ ए फीचर वेक्टर। तो इन दिस केस वी कैन राइट दिस थिंग एज फीचर वेक्टर प्रोवाइडेड थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, और इस तरीके से दिखाएंगे तो इसको आप बोल सकते हैं दिस इज़ लाइकलीहुड, दिस इज़ P is the likelihood, and this can be estimated by multiplying all the distribution function. ये जितने भी distribution function है इनको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो इसलिए हमने सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो k इक्वल टू n टू n, क्योंकि n डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थे और ये आपका कर्व क्या था, वो एक्स के और थीटा था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इक्वेशन निकल के आ गया। अच्छा, आमतौर पर जो इक्वेशन आते हैं बड़े टफ आते हैं इसमें, है ना, एक्सपोनेंशियल आता है, ये आता है, वो आता, तो हम नॉर्मली लाइकलीहुड जो है इसको लॉग में बदल देते हैं, क्योंकि भाई अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल जो है अपने आप आएगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं, लॉग ले लें तो काम आपका आसान रहता है। तो ये जो लाइकलीहुड है इसको फिर से लॉग ले लीजिए तो आपका फ़ायदा होगा। भाई जहाँ पर लॉग से आपको लाभ होगा वहाँ पर लॉग लगा के काम कर लेंगे, जहाँ लॉग से लाभ नहीं हो रहा है वहाँ पर डायरेक्टली आप इस तरीके से अपने एस्टिमेशन को निकाल लेंगे। सो लॉग वाला भी देख लिया जाए तो टेक log on both of the side, and we will write the thing as L of theta equal to ln of
पी डी ऑफ थीटा है ना, इसका लॉग लेना है ना आपको। तो अगर इसका लॉग आपने लिया तो ये क्या होगा, ये जो पाई है ये आपका सम में बदल जाएगा, क्योंकि लॉग का यही प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट को सम में बदल देना है ना। तो यानी कि पी एक्स के थीटा ये आपका जो है प्रोडक्ट जो है सम में बदल जाएगा फ्रॉम के इक्वल टू 1 to n। तो ये भी एक मतलब अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि जो है प्रोडक्ट करना ज़्यादा टफ होता है, सम करना आसान होता है। तो लॉग लेने से ये फ़ायदा हो गया कि प्रोडक्ट आपका सम में बदल गया। अब ये जो आपका पैरामीटर एस्टिमेशन है तो ये आपका किस तरीके से हो गया, लॉग वाला इस तरीके से आपका हो गया, यानी कि थोड़ा सा जो है फ्लैटन कर हो गया है ना। मतलब जो है ज़रा सा नुकसान भी आपका हुआ लॉग लेने से, कि यहाँ पर क्या है स्टीप कर्व जो आपका मिला है ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली यहाँ थीटा आपको मिलता, अब उतना एक्यूरेटली नहीं, ज़रा सा जो है फ्लैटन हो गया है। लेकिन ये है कि चलो जो है जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दिस हैज़ बिकम मच ईजियर। ठीक है, ओके। नाउ कोई भी चीज़ अगर आप निकालते हैं और ऑप्टिमम जो है निकालते हैं तो एक ही मेथड है, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसको जीरो करो, है ना भाई। अगर यहाँ पर ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है, चाहे लॉग का केस हो चाहे लॉग का केस ना हो, इसका तरीका तो वही है कि इसका डिफरेंशिएशन लेके जीरो करो, जो वैल्यू आवे वो आपकी जो है ऑप्टिमम होगी, मैक्सिमम या फिर जो है मिनिमम होगी, ऑप्टिमम वैल्यू होगी। तो यही हम फिर से करने जा रहे हैं। So if I have more number of sample, our accuracy will be more, and if I have less number of sample, our accuracy will be less. तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर है कि on the basis of number of sample, our accuracy will also depend. Now because theta has n component, therefore for differentiation I have to take n number of parameter. Suppose theta has p number of components, so theta can be represented as theta 1, theta 2 up to theta p, and because theta is a vector quantity, therefore I am writing it in the form of transpose, है ना। आजकल जो है आर लैंग्वेज की लैब आप लोग कर रहे हैं, तो अभी जो है आगे जब आप देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा जो है क्लियर होंगी कि जब भी जो है आप कोई वेक्टर लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि बगैर ट्रांसपोज किए वो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसका जो है ट्रांसपोज का फॉर्म आप करेंगे, तो ट्रांसपोज करोगे और फिर जो ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है, ग्रेडियंट आपको पता है कि द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट इज डेबा ऑफ डेबा थीटा 1, डेबा ऑफ डेबा थीटा 2, डेबा ऑफ थीटा 3, और लास्ट में चूँकि p नंबर आप लिए हैं तो डेबा ऑफ डेबा थीटा p। तो दिस विल बी द ग्रेडियंट। व्हाट इज़ योर एम? योर एम इज़ टू टेक ग्रेडियंट एंड इक्वल टू 0। तो आपका एम क्या है, जो लॉगरिथमिक आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये आप जो है लॉगरिथमिक लीजिए और इसका ग्रेडियंट निकालिए एंड इक्वेट टू 0। इन दैट केस ओनली यू विल गेट द ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको समझाया। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को क्लियर करने आपको जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम इस मेथड का वैलिडेशन करने जा रहे हैं। ओके, सपोज़ इसमें जो है गासियन आप जो है पढ़ रहे हैं कोर्स में, तो गासियन का ही फर्स्ट केस लेके चलते हैं। तो वी आर टेकिंग गासियन। इन द केस ऑफ गासियन, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर नेचुरली आर द पैरामीटर्स। ठीक है, ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। मान लिया सिग्मा आपको नोन है और म्यू आपका अननोन है। म्यू आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया सिग्मा स्क्वायर इज़ नोन एंड म्यू इज़ अननोन। म्यू आपको निकालना है बाय यूजिंग द लाइकलीहुड प्रिंसिपल एंड बाय सिग्मा स्क्वायर मेथड।
तो इस तरीके से ये आपको करना है। तो क्या किया जाए, अननोन, क्या किया जाए भाई, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ कहा जा रहा है, तो गॉसियन का फार्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो गॉसियन का फार्मूला अभी मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो गॉसियन का फार्मूला क्या लिखा है ऊपर, तो पी एक्सन थीटा इक्वल टू एल एन 2 पाई एंड दिस सिग्मा इन द केस ऑफ मल्टीवेरिएट केस। और जो दो जो है कांस्टेंट फंक्शन थे वो तो कैंसिल आउट हो गए थे ना, और दूसरा आपका हो गया था माइनस हाफ एक्स के माइनस थीटा ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स के माइनस थीटा, ठीक है। चेक कर लिया आपने ऊपर ये तो ये क्या हो गया, जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने लिखा था ये आपका वो है आपका। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है सिंपली, क्योंकि इसी से मैक्सिमम लाइक्लीहुड का एस्टिमेशन होगा। तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल ले रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ ए मल्टीवेरिएट केस, देयर आर 2 वेरिएबल्स इन दिस केस, वन इज़ म्यू एंड द अदर इज़ सिग्मा। सो you will take the gradient in this case, so gradient of ln e xn and this is k because I have taken k number of samples theta। तो अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपने किया तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि आपने मान लिया है कि द सिग्मा स्क्वायर इज़ नोन। तो अगर ये नोन है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म विल बी ज़ीरो। अगर इस है ना, नोन टर्म मतलब कांस्टेंट का अगर आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो वो आपका ज़ीरो हो गया, ले दे के सेकेंड टर्म बचा। सेकेंड टर्म में ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस एंड दिस मल्टीप्लिकेशन वुड बी स्क्वायर। तो स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, वो 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी सिंपली क्या बचा, माइनस सिग्मा इनवर्स एक्स के माइनस थीटा, यही बचा ना, बोलो भाई। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक टर्म पर हमने आपको समझाया था कि वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक का ट्रांसपोज और एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इसको अलग अलग लिखा जाता है। तो लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको स्क्वायर ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आपका x के माइनस थीटा स्क्वायर है तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, माइनस ये है, अब बाकी सिग्मा इनवर्स और ये तो आएगा ही डिफ्रेंशिएशन में, तो x के माइनस थीटा हुआ। अच्छा, इसको आपने क्या किया, ये वैल्यू आपको जीरो करनी है, तो दिस वैल्यू है ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालना है ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए जीरो करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा फॉर के इक्वल टू 1 आपका है ना, ये सिग्मा जो है ये आपका सम वाला नहीं है, ये आपका वेरिएंस है। तो वेरिएंस जो है क्या होगा कि ये इस साइड में जाएगा और ये आपका जीरो बन जाएगा, इसीलिए इस वेरिएंस को मैंने हटाया हुआ है, ठीक है। ये आपका सिग्मा जो है सम वाला नहीं है, ध्यान रहे, ये सिग्मा इनवर्स आपका वेरिएंस है, को वेरिएंस वाला वेरिएंस है, तो इसलिए इसको आपने हटा दिया है और यहाँ पर केवल सम आपका रह गया है। तो सम आपका रह गया है, तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर आर 2 टर्म्स, वन इज एक्स के एंड अदर इज थीटा। तो यू कैन राइट दिस टर्म एज sum of k equal to 1 to n xk, and on the right hand side you can write k equal to 1 n theta, ठीक है। ये थीटा आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा n ऑफ थीटा और यहाँ पर x के सम आपका रहेगा k इक्वल टू 1 to n, एंड दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 1 upon n सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, एंड
व्हाट इज़ दिस इज एक्चुअली म्यू, दिस इज एक्चुअली म्यू। तो आपने देखा कि केवल जो है वेरिएंस आपको पता था और इसने कितनी खूबसूरती से जो दूसरा अननोन आपका पैरामीटर था उस निकाल करके रख दिया है ना। क्योंकि म्यू की डेफिनेशन क्या होती है, म्यू की डेफिनेशन यही होती है, जितने सैंपल हैं सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ सैंपल से भाग दे दीजिए, वही आपका म्यू होता है। तो पैरामीटर एस्टिमेशन के केस में इतनी जो है खूबसूरती से केवल एक पैरामीटर पता था और इसने जो है दूसरे पैरामीटर को फाइंड आउट कर लिया, एक केस। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए कि यहाँ तो एक पैरामीटर आपको पता था, अब हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पैरामीटर पता नहीं है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। दूसरे केस 2 हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पैरामीटर आपको पता नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पैरामीटर आपको पता नहीं है तो हम दोनों को मान लेते हैं, एक पैरामीटर θ1 है, एक पैरामीटर θ2 है, ठीक है। एक पैरामीटर θ1 है, एक पैरामीटर जो है आपका θ2 है। मान लिया गॉसियन का ही केस लेके चल रहे हैं, तो इसमें जो है जो आपका पैरामीटर होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि यही दोनों होते हैं। तो मान लिया कि θ1 आपने माना है म्यू को और θ2 आप मान के चल रहे हैं सिग्मा स्क्वायर को, ये दो आपके पैरामीटर हैं, ठीक है। तो अगर ये दो आपके अननोन हैं तो इसी फॉर्मेट में आपको गॉसियन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। अब जो है गॉसियन के इक्वेशन में म्यू और जो आपका सिग्मा वो लिखिएगा। गॉसियन का इक्वेशन जो है θ1 θ2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपको पता ही नहीं है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आपने गॉसियन का इक्वेशन जो अभी ऊपर वाले एग्जांपल में लिखा था उसी को आपने लिखा x के थीटा इक्वल टू -½ log ऑफ 2 पाई। अब यहाँ पर जो है सिग्मा स्क्वायर नहीं आपको लिखना है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर के प्लेस पर हम यहाँ लिख रहे हैं θ2 क्योंकि हमको पता ही नहीं सिग्मा स्क्वायर क्या है। इसी तरीके से -1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यहाँ भी आपको θ2 लिखना है। और इसी तरीके से x के माइनस म्यू, तो हमको तो म्यू भी नहीं पता है तो हम यहाँ पर θ1 लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने गॉसियन का इक्वेशन लिख दिया। अब हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन लिखें, इसका जो है डिफरेंशिएशन करें। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन यानी कि ग्रेडियंट निकालना है। क्योंकि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीवेरिएट केस है, इसलिए यहाँ पर ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट इसका आप निकालिए ln p x के थीटा। जब आपने निकाला तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 वेरिएबल हैं। तो अगर जो है आपने θ1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि लेक्चर बीत रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये θ1 के रिस्पेक्ट में आपने किया तो θ1 केवल जो है सेकंड पार्ट में है ना, θ1 केवल इस पार्ट में है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स x के माइनस थीटा और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो 1/θ2 x के माइनस θ1 यही आ गया। तो 1/θ2 x के माइनस θ1 ये आपका आ गया। दूसरे केस में जो है θ2 के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर जो है दूसरे केस में θ2 तो θ2 दोनों पार्ट में है, तो यहाँ पर केवल -½ log ऑफ 2 पाई आएगा। और इस केस में ये आपका कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो -½ और सॉरी ये θ2 नीचे है ना, तो कुछ मतलब और इसमें आएगा कि डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो वाला फार्मूला आपका यूज़ किया जाएगा। तो उससे मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मेरे पास लिखा पड़ा है, आप इसको कर लीजिएगा। प्लस x के माइनस θ1 स्क्वायर अपान 2 ऑफ θ2 स्क्वायर, ये आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके दोनों टर्म यहाँ पर आए हैं। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपका 0 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर ये आपका 0 हो गया तो दोनों आपके अलग अलग 0 होंगे। तो अगर पहला आपका 0 होता है तो उस केस में क्या होगा, 1/θ2 x के माइनस θ1 विथ समेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ सैंपल हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0।
तो अगर ये आपका 0 होता है और दूसरा भी लिख लें लगे हाथ, दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, कहीं कोई हैंग कर जा रहा है, तो दूसरा क्या होगा, एंड दूसरा होगा सम ऑफ 1/2 ऑफ थीटा 2 प्लस सम ऑफ एक्स के माइनस थीटा 1 स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ थीटा 2 स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 0। दोनों आपके 0 हो गए। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, तो पहला अगर आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, पहला जब आपने सॉल्व किया तो दोनों जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये थीटा 1 है, तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा आप, है ना, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी k इक्वल टू 1 to n एक्स के एंड दिस इज इक्वल टू म्यू, है ना। ये जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है वो आप लोग कर लीजिएगा, एंड थीटा 2, क्योंकि यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स है केवल, एंड थीटा 2 इक्वल टू 1/n सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर एक्स के माइनस थीटा 1 कैप स्क्वायर। और ये क्या है आपका, ये आपका वेरिएंस की डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर दोनों वेरिएबल आपके अननोन हैं उस केस में भी ये चीज़ें निकल के आपकी आ रही हैं, है ना। अगर दोनों वैल्यूज़ आपका अननोन है उस केस में भी ये आपका निकाल करके बता दे रहा है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, इसको करिएगा, थोड़ा हिंट भी आपको दे देंगे। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एग्जांपल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स थीटा इक्वल टू थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स फॉर एक्स इज लार्जर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। और इसका आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है निकाल करके आपको बताना है, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है क्या है ना। थीटा की वैल्यू आपको निकाल करके बतानी है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, आपको निकाल के बतानी है। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो क्या आ रही है, अगर यहाँ पर जो है फीचर वेक्टर के फॉर्म में आप लिखते हैं तो ये हो गया d ऑफ थीटा, है ना, क्योंकि x जो है सैम्पल में जो आप आइडेंटिफाई करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ फीचर वेक्टर करेंगे, एंड दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थीटा e पावर माइनस थीटा एक्स के, है ना। ये तो यही आपका इक्वेशन था ना। अच्छा, तो इस वाले इक्वेशन में फिर आपने लॉग ले लिया था, तो आप इसका दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ थीटा क्या होगा, दिस विल बी ln ऑफ पी डी विथ थीटा, और ये आपका सम में बदल जाएगा, सम ऑफ ये आपका लॉग जब आप लेंगे तो ln ऑफ थीटा माइनस सम ऑफ थीटा एक्स के इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करना है, जैसे मैंने ऊपर के दो जो है केसेस में किया है। तो फार्मूला और इक्वेशन तक मैं आ गया हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स रह गई है, इसका ग्रेडियंट लेकर के आपको 0 कर देना है, ठीक है। और कल हमको बताइएगा कि वैल्यू क्या आई है, ठीक है। यानी कि इसका फिर आपको ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट ऑफ एल थीटा, और जो भी ग्रेडियंट आता है आप इसको 0 कर देना है, ठीक है। और जब आप इसको 0 करेंगे तो फिर आपको थीटा की वैल्यू निकाल करके हमको बतानी है, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है कल के लिए, और ठीक है, आज का लेक्चर बंद किया जाता है।